everyone, a very warm welcome to today's session. सिस्टर काल नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है सबका आज के सेशन में जो कि होने वाला है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. So बच्चों, we are basically getting started with the chapter called Inside Our Earth, which can be divided into two topics. ये topics है interior of the earth and rocks and minerals. So both these topics will be covering up today. और जो concepts हम करने वाले हैं वो है layer of the earth, crust, continental mass, oceanic crust, mantle, core, rock and igneous rocks. So all of these will be covering up today. Let me also quickly introduce myself. So hello बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe and I come with an experience of more than 9 years in the field of education. I have done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. Now before we move on forward, आई एम श्योर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास कई सारे ऐसे टर्म्स, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमें सिर्फ किताब से पढ़कर समझ नहीं आते हैं या फिर हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं, बहुत इंट्रीगिंग लगते हैं. वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, वी वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट. व्हाट डू वी डू इन दिस केस? बताना आप क्या करते हो. नॉर्मली हम जाकर के गूगल करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं until unless we have more books which generally we don't, like a lot of other supplementary books, and उसका कोई पॉइंट भी नहीं है इतनी छोटी सी क्लास में अलग अलग तरीकों के किताब इतने सारे रखने का. लेकिन कई बार रिटन टेक्स्ट से समझ नहीं आता है, हम ऑडियोज या विजुअल्स, ऑडियो विजुअल प्रेफर करते हैं. Now what I have for you is going to save a lot of time in your research of whatever you're looking up for. So होता ये है कि जब आप गूगल करते हो या आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, so you get a lot of suggestions. अब उसमें से हमारे लिए क्या रेलेवेंट होगा, हमारे लेवल का क्या होगा, ये ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है. सिर्फ इतना ही नहीं, क्या कीवर्ड सर्च करना है, क्या एग्जैक्टली ढूंढना है, ये भी हमें कई बार पता नहीं होता है. एंड वी एंड अप वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम more than that's actually required. So I have the best solution for you, which is Imbibe Lens. So we'll just quickly have a lens moment of the day. As you can see here in the picture, हमें कुछ भी नहीं करना है. जो भी किताब आप पढ़ रहे हो आपने सिर्फ उसे स्कैन कर लेना है. You just have to scan the text. And all the important keywords over here will automatically get popped up. वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे और यहाँ पे एक पॉपअप की तरह आने लग जाएंगे. Now when this starts appearing as a pop-up at the bottom of your screen, you can just select the one that you want to learn more about. And उससे related जो भी 3D videos हैं, 3D models हैं, जो भी है वो अपने आप आपके लिए सर्च में आ जाएगा. And the best part is YouTube पे कई बार आप जब वीडियोस ढूंढते हो तो उसमें शायद एक बड़ी वीडियो होती है जिसमें से एक छोटे टॉपिक को आप समझना चाहते हो. इट्स ऑलवेज गुड टू वॉच द एंटायर वीडियो, बट समटाइम्स वी डोंट वांट टू, और वी नो द अदर स्टफ एंड इट जस्ट फील्स मोर लाइक इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम. दिस विल हेल्प अस सेव immense amount of time because you'll find the videos or the models or the resources exactly about what you are looking for within seconds. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैम अगर हम बुक से नहीं पढ़ रहे, हम फोन पे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, तो बच्चे आप फोन पे स्क्रीनशॉट लेकर के उस स्क्रीनशॉट को भी अपलोड कर सकते हो फ्रॉम योर गैलरी. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट मी क्विकली शो यू हाउ. So these are the topics that we're going to do today. Now what I'll do is I'll quickly take my phone. मैंने अपना फोन ले लिया है यहाँ पे और मैंने Imbibe Lens ऐप खोल लिया है. तो आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है अपने फोन पे. ऐप खोलो, just give the access to your camera and take a picture of whatever you're looking at. So this is what I'm looking at right now. I have taken a picture of my screen and as you can see all the important keywords have already started popping up here at the bottom of my screen. So I have layers of earth, earth's crust, igneous rock, interior of earth, core, mantle, सब कुछ. तो मैं interior of earth को select करती हूँ. ऐसा करते ही जो भी रिलेटेड वीडियोस है आप देख सकते हो कितने सारे, वो सारे मेरे पास यहाँ पे रिकमेंडेशन की तरह आ गए हैं. इतना ही नहीं, लेयर्स ऑफ अर्थ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, सो आई ऑल्सो गेट एज एन ऑप्शन to select and study this from the 3D model that's there, and I can even interact with it. Can you see this happening? I can zoom in into it, I can zoom out, I can move this, play around, and that's how fun it is. So कुछ भी पढ़ना है आप इमेजिन करके देखो क्या फन होगा कि आप बस सर्च करोगे और आपके पास मटेरियल्स अपने आप रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे.
है ना। चलो, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इम्बाइब लेंस एंड आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर इट एटलीस्ट वंस, बिकॉज इट जस्ट improves your whole experience of learning at an another level. So with that note, let's get started. But you will start with three basic questions. If you've watched the videos before, you very well know the drill. ये तीन सवाल हमारे सेशन से ही जुड़े हुए हैं. It's just to have a basic baseline check कि हमें कितना पता है हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में. अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हो, वेल गुड. नहीं कर पाते हो तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज द आइडिया इज जस्ट टू एक्सपोज यू टू काइंड ऑफ द टॉपिक्स दैट विल बी एड्रेसिंग इन टुडेज सेशंस. सो अगर आप अभी जवाब नहीं दे पाते हो तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी है. हम क्या करेंगे, हम सेशन खत्म होने के बाद क्विकली आकर के एक बार रिविजिट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को. तीन सवाल है बस, और देखेंगे कि क्या अब हम आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं. मैम का 100% वादा है कि आप जरूर आंसर कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. मैम इज गोइंग टू क्विकली हाइड हरसेल्फ सो दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है the thickness of the mantle is 50 kilometers, 2900 kilometers, 1500 kilometers और 2000 kilometers. सोचो जरा और गेस करो. $50 kilometers, 2900 kilometers, 1500 kilometers or 2000 kilometers. What is the thickness of mantle? Okay, and I hope that you got it right, but even if you didn't, as I told you, mantle हम आज पढ़ने वाले हैं और इसमें हम इस बात की भी जिक्र करेंगे. बट जस्ट सो यू नो, इट्स 2900 किलोमीटर्स. आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इनटू द सोल्यूशन हम टुवर्ड्स द चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपने आप ही एक्सप्लोर कर लेंगे, तो सोल्यूशन में नहीं जाते हैं. आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The magma that comes out and flows onto the dash of the earth is called dash. And here are your options. The magma that comes out of that out and flows onto the dash of the earth is called dash. Here is the hint for you. सो बेसिकली मैग्मा कहाँ से आता है? मैग्मा अंदर से आता है, और मैग्मा की बात हो रही है तो मैग्मा तो होगा नहीं. सो इट विल कम फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ एंड विल flow on what? The surface, right? So the magma that comes out and flows onto the surface of the earth. It comes from the inside, it flows onto the surface of the earth. इसे हम लावा कहते हैं. ठीक है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी गेट स्टार्टेड. ये देखो, आपके लिए यहाँ पे हमने मॉडल दे रखा है. द अबव गिवन डायग्राम इज शोइंग व्हाट? सोलर सिस्टम, layers of atmosphere, types of rocks or interior of the earth. Solar system,
layers of atmosphere, types of rocks, or interior of the earth. So guys, we have been talking about ये पूरा chapter का नाम ही यही है, which is interior of the earth. We can see various layers of what is inside the earth, and that's what has been shown here as well, right? So हमें यहाँ पे यही दिखाया गया है. So on that note, let's get started. You don't have to go far to find the densest planet in our solar system. It's actually our Earth. जहाँ पे सारे कुछ हैं, सब कुछ मिलता है, लाइफ मिलती है, हर एक चीज अवेलेबल मिलती है, विच इज वॉट अर्थ पे. ठीक है. It weighs around 5.97 into 10 to the power 24 kgs and has a density of 5.51 grams per cubic centimeter. Now you do your own math. It is dense. Earth behaves like a huge magnet. ठीक है. ये सोचकर बड़ा फैसिनेटिंग लगता होगा. सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ाई होगा, सब कुछ अपनी तरफ पुल करता है अर्थ, राइट. और ये काफी फैसिनेटिंग लगता है सोचकर, क्योंकि अगर ये सब कुछ अपनी तरफ पुल करता है तो बाकी प्लैनेट्स, बाकी चीजें हमने कैसे पुल नहीं की है. कई तरह के सवाल आते हैं नहीं हमारे दिमाग में. तो अर्थ के बारे में और कई सारे फैक्ट्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ये वाला सेशन. ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, the very first thing that we begin with is the layers of the earth. Well, first thing that we are going to explore is going to be the various layers of the earth. ठीक है. Earth is composed of several concentric layers. Concentric क्या होता है? Concentric types of circles होते हैं. यानी कि एक ही सेंटर के साथ with the same center जब आप multiple circles बनाते हो तो उसे हम concentric circles कहते हैं. ठीक है. ये देखो, एक ही सेंटर है, सेंटर में चेंज कर दूंगी, ये नहीं है सेंटर. This is not what I want. I'll draw it from here. Better. So this is not exactly an alignment, but what I'm trying to say is मैं छोटा ड्रॉ करके आपको दिखा सकती हूँ. Let me show you. ये एक सेंटर है, इसके अराउंड एक सर्कल, सेम सेंटर के अराउंड ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल. तो ये जो पैटर्न होता है, यहाँ सेंटर है, इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है. और हमारा लेयर्स ऑफ अर्थ भी ऐसा ही है. ये हमारा सेंटर है और इसके अराउंड ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल बनता जाता है और अर्थ को सराउंड करता जाता है, अनियन की तरह. जैसे जैसे आप लेयर्स हटाओगे अलग अलग चीजें पील होती जाएंगी. ठीक है. मेजर लेयर्स जो है अर्थ के वो इंक्लूड करते हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, क्रस्ट नॉर्मली आउटर लेयर के लिए कहीं पे भी हम यूज करते हैं ना, जो बाहर का लेयर होता है, और कोर का मतलब होता ही इनसाइड है. सो क्रस्ट एंड कोर is basically very clear. Core is the innermost layer, crust is the outermost layer, और बीच में हमारा आता है mantle. So the deepest mine in the world is in South Africa. Mining की एक्टिविटी आपको पता होगा, हम डिग करते हैं अर्थ में और जो भी रॉक्स, मिनरल्स, कुछ भी हमें चाहिए वो हम वहां से फिर ऑब्टेन कर लेते हैं, अक्यूमुलेट कर, जो अक्यूमुलेटेड है, जमा होती है, वो निकाल लेते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ तो जो सबसे डीपेस्ट हमने क्रस्ट पे माइन बनाया और हम डिग करते गए, वो सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है आपका. Sorry, it's about 4 kilometers deep. In search of oil engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. तो यहाँ पे आप देखो, आपको डेप्थ की थोड़ी सी अंदाज लग रही होगी. यहाँ पे हम 4 से 6 किलोमीटर तक जा चुके हैं. That's the mine that we have created. How fascinating is that?
So we'll start with the very first, the very outermost layer of the earth, which is the crust. ठीक है? हम किस लेयर पे रहते हैं? द लाइफ सर्वाइव्स ऑन द आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. तो सबसे अपर मोस्ट लेयर हमारा अर्थ का क्या है? क्रस्ट कहलाता है, जिसपे लाइफ सर्वाइव करती है, हम सब रहते हैं. ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो द थिनेस्ट लेयर. सिर्फ ये आउटर मोस्ट लेयर ही नहीं है, ये सबसे पतली लेयर भी है. आपको दिख रहा होगा, ये देखो अर्थ का क्रस्ट है, ये सबसे पतलू लेयर है, बाकी सब मोटे मोटे हैं. और ये कितनी है? approximately 35 kilometers thick on continental mass and only 5 kilometers thick on ocean floors. क्योंकि बच्चे होता क्या है, अर्थ पे जैसे यहाँ पे मास है, लैंड है, तो लैंड ऐसा रहता है, बट ओशन ना पानी से घिरा रहता है डेप्थ में, और फिर जाकर जमीन आती है. तो यहाँ पे तो चलो हमारा जो थिकनेस है वो फिर भी इतनी दूर जो है लगभग 35 किलोमीटर्स की है. लेकिन यहाँ पे ओशन क्योंकि इतना डीप होता है कि इसके बाद सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही लगभग हमारा क्रस्ट खत्म होने लग जाता है. ठीक है, चलो इसी बात पे हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन. नाउ यू विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. डैश इज द लेयर ऑफ द अर्थ दैट वी लिव ऑन, दैट इज वेयर द लाइफ सर्वाइव्स. क्रस्ट, कोर और मैंटल. Let me quickly show you the hint. It is the outermost layer of the earth. We have just read once. I'm sure you'll be able to answer this. And the correct answer is, we are talking about the crust. किसकी बात कर रहे हैं हम? Crust की बात कर रहे हैं. ठीक है? So crust, which is 35 kilometers का depth on the surface areas, on the land portion. Water वाले portion में it's just hardly 5 kilometers. So that is what crust is, and the life exists on the very outermost layer, on the crust. So initially, Earth was a huge ball of dust and just hot gases. It wasn't how it looks right now. But ये ball spin होता गया, तो ऊपर की लेयर ना धीरे धीरे ठंडी होती गई और जमती चली गई, लेकिन अंदर गर्मी भरी रही. It was very very hot inside. So this outer layer which cooled down became solidified is what created the crust on which the life survives now. It's hard and cool, hence sustains lives on it. इसीलिए वहाँ life sustain कर सकती है. अंदर में सारी गर्मी, सारे gases trap हो गए, और वहाँ बहुत ज़्यादा heat है जो कई बार volcanic eruptions से बाहर निकल कर आता है. इतना ज़्यादा कि कुछ भी जो है वो solid state में exist नहीं करता, सब कुछ molten form में है, सब कुछ पिघला हुआ है, लिक्विडी फॉर्म में है, बिकॉज ऑफ द हॉट टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ दैट्स ट्रैप्ड. सो क्रस्ट बच्चे कॉन्स्टिट्यूट करता है, constituents of crust vary between continental and oceanic crust, right? जैसे मैंने आपको अभी हमने देखा भी समझा भी कि कॉन्टिनेंट्स है यानी कि लैंड जहां जहां पे है, और फिर पूरा वाटर है. प्लस आपको ये भी पता होगा दैट अर्थ इज एक्चुअली कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी ब्लू मोस्टली, एंड ऑल ऑफ दीज पैचेस दैट यू सी इज लैंड विच इज रफली not more than 30%, in fact less than 30%. तो पूरे क्रस्ट को हम कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो 35 किलोमीटर्स की है, और ये है जहां पे क्रस्ट हमारा पतला हो जाता है, 5 किलोमीटर्स जैसा हो जाता है. ठीक है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कंप्राइजेस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. सिलिका और एल्यूमिना जो हमारे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कंटेन करता है एलिमेंट्स, और इसे हम रेफर करते हैं एज सियाल, यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिना विच इज सियाल. तो क्रस्ट किस चीज का बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है, विच मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिना. ओशनिक क्रस्ट की अगर बात की जाए तो देखो जमीन तो वहां भी है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो आएगी नहीं. सिलिका हमें वहां भी मिलता है, मैग्नीशियम हमें वहां भी मिलता है, और इसीलिए इसे हम सीमा कहते हैं. सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सिलिका प्लस एल्यूमिना, सियाल इज योर लैंड, एंड वाटर इज सिलिका प्लस मैग्नीशियम, which is your सीमा. Okay. Now
the crust forms just 1% of the total volume of the earth. जो पूरी की पूरी वॉल्यूम है हमारे अर्थ की, वो सिर्फ क्रस्ट 1% उसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है. 84% मैंटल है और 15% जो है वो कोर है. यानी कि मात्र 1% का हिस्सा है जिसपे हमारी जिंदगी चल रही है, हम सर्वाइव कर रहे हैं. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट. बट एट द सेम टाइम अ लिटिल बिट स्कैरी एज वेल कि सिर्फ 1% पे रह रहे हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं है. और इसीलिए बड़ी आसानी से वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें हमें दिख जाती हैं क्रस्ट के ऊपर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मास की. क्या मतलब है इस शब्द का? कॉन्टिनेंटल मास यानी कि लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस. तो बेटा कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े आपको टुकड़े मिलते हैं लैंड के अर्थ पे, उनको हमने कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया है ना. जैसे कि ये पोर्शन एशिया, ये यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना. ये जो बड़े पीसेस ऑफ लैंड्स हैं इनको हमने कॉन्टिनेंट का नाम दिया है. एंटार्क्टिका भी है बिल्कुल साउथ में. प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ये क्रस्ट से बना हुआ लैंड है, टुकड़ों में टूटा हुआ है, बाकी पानी से घिरा हुआ है. The continental crust is less dense compared to oceanic crust, allowing it to rise above the sea level from the continents. जो भी चीज कम डेंस होती है, जिसकी वॉल्यूम वेट कम होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा. जो ज्यादा डेंस होती है नॉर्मली में पानी में डूबती है. कम डेंस वाली चीजें तैर पाती हैं क्योंकि उतना एरिया ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करती हैं, तो दे आर एबल टू स्टे अफ्लोट. तो जो ज्यादा डेंस क्रस्ट है, भारी था, डेंस था, वो चला गया समुद्र के नीचे. जो हल्का था वो ऊपर आ गया और तैरता रह गया, अफ्लोट रह गया और अपनी जगह बना ली. और इसी तरीके से कॉन्टिनेंट्स हमें ऊपर मिलते हैं, ना कि ओशंस में दबे हुए. It comprises various types of rocks and minerals. अलग अलग तरह के rocks, minerals इसमें हमें बहुत सारे भरपूर मात्रा में मिलते हैं, contributing to the diverse landscapes. जैसे कि mountains, deserts, कहीं पे कोई mineral की richness, कहीं पे कोई oil मिल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग formations हैं. Contributing to the diverse landscapes and geological features on the continents. जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पहाड़, कहीं समुद्र, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेटूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं. तो ये अलग अलग जो रॉक्स बने, अलग अलग मिनरल्स बने, उनके अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हुई, उसी से ये अलग अलग तरह के लैंड मासेस इतने डाइवर्स तरीके से एग्जिस्ट करने लगे हमारे इन एंड अराउंड विच वी फाइंड राइट नाउ. And that, just on a quick note, a reminder for you, हमारे पास आप, क्योंकि क्लास 6 में, 7 में, 8 में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते नहीं हैं जो लैब में परफॉर्म करवाए जाते हैं, जहाँ पे हमें टीचर्स ले जाते हैं, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि फन ऑफ प्रैक्टिकल्स हम ना करें. इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको, बट जस्ट लेटिंग यू नो दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी फन ऑफ learning by doing, we have virtual lab experiences for you, and imbibe lens का magic तो आपने वैसे भी देख ही लिया है ना. तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है, सियाल is mainly composed of what minerals? Dash and aluminium. So you have your options: sulfur, silica, silver and sodium. Let me quickly show you the hint.
Okay, and the correct answer. So we've understood Sial में SI stands for the silica. Silver से confuse नहीं होंगे. Aluminium stands for the Al stands for aluminium. So Sial is basically silica plus aluminium, which we have already understood. ठीक है, चलो. Now the radius of the earth. Radius क्या होता है? पढ़ा है मैथ्स में सबने. जब भी कोई सर्कल होती है, उस सर्कल का एक सेंटर होता है ना. द सर्कल हैज अ सेंटर, जिससे वो हर तरफ बराबर मेजर करता है. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे ये सारे डिस्टेंस बराबर होते हैं. तो सेंटर से बाहर वाली रिंग तक, जिसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं, ये जो लाइन बनती है, इसे हम रेडियस कहते हैं. ये अगर रेडियस आप अर्थ का मेजर करोगे तो दैट जस्ट द रेडियस अलोन ओके इज 6371 किलोमीटर्स. यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 6371 किलोमीटर्स. सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग अ बॉल आवर अर्थ प्लैनेट इज, राइट. चलो अब फिर समझते हैं ओशनिक क्रस्ट के बारे में. थोड़ा हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट समझ लिया, सियाल के बारे में समझ लिया. ओशनिक क्रस्ट जो है वो बेसिकली बेड ऑफ द ओशन है. यानी कि अगर मान लो ये ओशन है, बहुत बड़ा है, पर मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसा बना करके दिखा दे रही हूँ. यहाँ पे ये ओशन है हमारा, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है. ओशन, सी, वॉट एवर इज कंप्लीटली फिल्ड ऑफ वाटर ओवर हियर. लेकिन पानी के नीचे कुछ तो होगा. आपने देखा ही होगा मूवीज में जाकर के चीजें अगर कुछ डूब जाती हैं, कोई शिप सिंक कर जाता है, तो वो नीचे ओशन बेड में, सी बेड में मिलता है हमें. तो ये क्या होता है? ये ओशन बेड है. नीचे जो है हमारा, नीचे यहाँ पे दिस वुड बी योर, ये जमीन रहती है. पानी के नीचे सबसे नीचे जमीन रहती है. इसे ही हम क्या कहते हैं? हम इसे ही ओशन बेड कहते हैं. ये जो नीचे होता है ये ओशन बेड कहलाता है. ये ओशन बेड किस चीज की बनी है? ये लैंड का बना हुआ है. लैंड का मतलब क्या हो गया? क्रस्ट है. अगर लैंड है तो मतलब क्रस्ट है. ठीक है. सो ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्स द फ्लोर बीनीथ द अर्थ्स ओशन. अर्थ के नीचे के फ्लोर को फॉर्म करता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अर्थ सर्फेस. क्योंकि 70% पानी से घिरा हुआ है, तो ओशनिक क्रस्ट बहुत बड़ी परत है जो हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करती है. ये थिनर है क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही जाती है, तो पतली है. इसकी डेंसिटी लेकिन बहुत है, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी काफी हाई है. देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज कवरिंग द सर्फेस. ये किस चीज से ज्यादातर बना है? बसाल्टिक रॉक्स. बसाल्ट के जो रॉक्स हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम में, यानी कि सिमा में बहुत ज्यादा रिच हैं. ओशनिक क्रस्ट इज कॉन्टिन्यूअली क्रिएटेड एट मिड ओशन रिजेस थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटीज. यानी कि पानी के अंदर जो है वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है. अंदर से जमीन फट करके, क्रैक हो करके, जो मैंटल है हमारा, वहां से लावा निकलता रहता है. फिर ये पानी में आकर के कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होकर के क्या होगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड में टर्न हो जाता है. तो ये यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पर पे वापस जमा हो जाता है लैंड की तरह. तो ये जो और फिर क्या बन जाएगा? ये क्रस्ट का हिस्सा बन जाएगा. किसके क्रस्ट का? ओशनिक क्रस्ट का. तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होती रहती है. बिल्कुल जहां गहराई में ओशन है, जितना गहरा ओशन होगा उतना ज्यादा मैंटल के पास होगा, उतना ज्यादा डीप होगा, उतनी गैप मैंटल और क्रस्ट के बीच में कम होगी ओशंस में. क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो अगर आपने इमेजिन करना है तो यहाँ पे ये हमारा लैंड वाला क्रस्ट है, तो आप देख रहे हो डिस्टेंस, ये इतना ज्यादा ऊपर है गहराई में अगर सेम लेवल पे रख के देखे, और ओशन का क्रस्ट यहाँ पे, और यहाँ से मैंटल शुरू हो जा रहा है. तो यहाँ से यहाँ बर्स्ट करके निकलना उतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आना मुश्किल है. तो ये क्रस्ट जहाँ पे है ना, वहां पे नॉर्मली बर्स्ट करते रहते हैं वॉल्केनोज, और वो सॉलिडिफाई हो करके इवेंचुअली धीरे 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 धीरे, स्पेशली जो डीपेस्ट पॉइंट है, ये जैसे डीपेस्ट पॉइंट है ना,
यहाँ पे इतना डीप नहीं है, यहाँ पे फिर भी मैंटल और इसके बीच में गैप है, यहाँ पे गैप है, बट ये बिल्कुल पास है। इन मिड रिजेस में, बीच बीच में हमेशा ही जो है जमीन बर्स्ट करते रहती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, और वो चीजें सॉलिडिफाई होकर के लैंड वाले ओशन क्रस्ट में चेंज, ओशन वाले लैंड क्रस्ट में चेंज होते रहते हैं। सो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर ये जो सेंटर की बात कर रहे थे हम, जहां हमने रेडियस की बात की, इस सेंटर में आपको पहुंचना है, ये सेंटर में अगर आप पहुंचना चाहते हो तो टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप जल के बह जाओगे, इतनी गर्मी है अंदर। आप सोचो ना, जो जमीन ऊपर इतनी गर्मी में भी, जिसमें हमें गर्मी लग रही होती है, हम फैन चलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हीट स्ट्रोक हो जाता है हमें, इतनी गर्मी तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम अर्थ के सर्फेस के अंदर जाए तो इमेंस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इमेजिन करो, हजारों हीटर्स जो हैं, लाखों हीटर्स जला दिए गए ऐसी, तो आप बचोगे नहीं, आप मेल्ट कर जाओगे। बट स्टिल लेट्स जस्ट, इवन इफ यू वांट टू गो, आपको 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा। हमें अभी 4 5 6 किलोमीटर खोदने में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, उतना हम करते भी नहीं है इतना। और वो भी जब आप मतलब ओशन के फ्लोर से उतना डीप जाओगे, ओशन का डीपेस्ट फ्लोर से जब उतना और 6000 किलोमीटर का एक टनल बनाओगे, तब आप जा करके अर्थ के सेंटर पे पहुंच पाओगे। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, राइट? चलो अब हम बात करते हैं मैंटल की। मैंटल विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये क्या है? तो सबसे पहले अब देखो, यहां पे आपको दिख रहा है, ये अर्थ है हमारा, ऐसा दिखता है। अर्थ में ये हमारा इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मतलब सॉरी, ये कोर का इनसाइड पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, ये मैंटल है, और ये जो सबसे बाहर है ये हमारा क्रस्ट है, पतली सी लाइन, ये पूरा मैंटल है। मैंटल कहाँ है? समझ तो आ ही गया है, ये सिचुएटेड है क्रस्ट और आपके कोर के बीच में, ये कोर है और ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है जी। तो सिचुएटेड बिटवीन द क्रस्ट, बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा, ये एक थिक लेयर है जो कि लगभग 2900 किलोमीटर्स का, याद आया पहला क्वेश्चन किया था हमने, जो कि 2900 किलोमीटर्स का है, वो आउटर कोर तक जाकर टच करता है। यानी कि कहां से शुरू हो जाता है? यहाँ क्रस्ट से शुरू होके ये यहाँ आउटर कोर तक जाकर खत्म हो जाता है। ये ज्यादातर किस चीज से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट मिनरल्स से बना हुआ है। इसीलिए यहां से जब बाहर आती है ना चीजें, वॉल्केनिक इरप्शन होकर जब सॉलिडिफाई होती है, तो बहुत सारे मिनरल्स लेकर आती है, जहां से फिर हम अपने मिनरल्स को, मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं माइनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये बना हुआ है सिलिकेट मिनरल्स से। द मैंटल एग्जिबिट्स सॉलिड लाइक बिहेवियर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दो इट कैन फ्लो ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। तो ये जो है थोड़ा सा, क्रस्ट तो बिल्कुल सॉलिड है, कोर बिल्कुल लिक्विड है, मैंटल जो है थोड़ा सा सॉलिड लाइक बिहेवियर दिखाता है। हालांकि टेम्परेचर इतना है कि आप कह सकते हो कि इट्स नॉट प्रॉपरली सॉलिड, लेकिन जो प्रेशर और टेम्परेचर वहां पे मेंटेन हो रहा है, सॉलिड जैसा बिहेवियर है, इट्स लाइक सेमी सॉलिडिश टाइप्स। लेकिन जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में हमने देखा है, जब बहुत गर्मी होती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो चेंज होकर के वो भी फ्लो करने लग जाता है। And that brings us to the next question. Here we go. The mantle is the layer of the earth outside the crust. Let me quickly show you the hint.
बेटा ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया है कि क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, तो हम अंदर अंदर के लेयर्स धीरे 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 डिस्कवर करते जा रहे हैं। तो क्रस्ट सबसे ऊपर और फिर मैंटल उसके बाद, एंड सबसे नीचे में आएगा हमारा कोर। मैंटल के बारे में थोड़ी और चीजें समझते हैं। बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग नाम है ना, मैंटल, मेंटल जैसा साउंड करता है मैंटल। Convection currents with the mantle drive the movement of tectonic plates। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, एकदम से जो है कहीं ना कहीं पासा पलट गया है कि ये क्या बात हो रही है मैम, ये क्या हो रहा है, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो आपको ये तो समझ आ ही गया है कि हमारा जो है अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये समझो, किसी भी चीज को अगर बहुत सप्रेस करके आप दबा देते हो और हीट से कॉन्स्टेंटली गैस रिलीज हो रहा है, वो भी अंदर से प्रेशर रिलीज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। वो हमने क्या किया, क्रस्ट से बाइंड कर दिया, उसको बंद कर दिया। अंदर एक गोले में ना बहुत सारा गैस, हीट, टेम्परेचर, बहुत सारे करंट्स फ्लो कर रहे थे, उसको सॉलिड क्रस्ट से बंद कर दिया, जमा कर दिया एक जगह। और वो टेम्परेचर प्रोड्यूस, वो हीट प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली हुए जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो फ्लो कर रहा है मैंटल में। कन्वेक्शन करंट क्या होता है बच्चे, कोई भी फ्लूइड जब बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है या बहुत डेंस होता है, ठीक है, उसकी वजह से एक मूवमेंट कॉज हो जाती है उसमें। सो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स बेसिकली, जो कि टेम्परेचर की वजह से या डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से फ्लूइड में कॉज होता है, उसे कन्वेक्शन करेंट्स कहते हैं। ज्यादातर गैसेस और लिक्विड्स में ही आपको दिखेगा, टेम्परेचर के फ्लो सॉलिड मूव नहीं कर पाता है ना, वेव्स नहीं बना पाता है। तो ये मूवमेंट कॉन्स्टेंटली अंदर क्या होता रहता है, देखो कोर बहुत गर्म है, क्रस्ट ठंडा है, मैंटल बीच के टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे डेंसिटी की भी डिफरेंस है। तो ये कन्वेक्शन करंट्स कॉन्स्टेंटली मैंटल में फ्लो कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करेंगे। आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं, हम कैसे याद रखेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारी चीजें मैम अभी एक एक करके समझाती जाएंगी, तो आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। कन्वेक्शन करंट हम समझ गए। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं बच्चे, जब क्रस्ट ऊपर फॉर्म हुआ, हमारा क्रस्ट जो फॉर्म हुआ वो सीधा एक लेयर नहीं है, एक ब्लैंकेट जैसा नहीं है कि लिया और अर्थ के ऊपर लगा दिया। ये बड़े बड़े इमेजिन कर लो टुकड़ों की तरह है, जमीन के स्लैब्स की तरह है, सॉलिड रॉक्स का, जो ओवरऑल हमारा क्रस्ट या मैंटल का भी ऊपर लेयर बनाता है। उन्हें हमने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पूरी अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस है, पूरी अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है, वो सिर्फ एक ब्लैंकेट नहीं बनी है। ऐसा देख करके आपको यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, जब आप इस पिक्चर को देखते हो तो आपको देखकर ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो एक लेयर है। ऊपर से देखने में ऐसा बिल्कुल सही लग रहा है, पर आप खुद ही सोचो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड भी तो है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे ओशन है, ऊपर नीचे है जमीन। सो ये पूरी ब्लैंकेट लेयर नहीं है जो सॉलिडिफाई हो गई, वो बड़े बड़े स्लैब्स हैं जो आपस में पजल पीसेस की तरह जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ा स्लैब, ये दूसरा बड़ा स्लैब, फिर इसके बाजू में स्लैब, ऐसे से करके बड़े बड़े अलग अलग साइजेस के स्लैब्स जुड़े हुए हैं, और ये स्लैब्स इधर उधर मूव करते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स हमें आज दिख रहे हैं ना, जिस तरीके से दिख रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स थे, यानी कि बहुत जो सारे स्लैब्स थे मिलकर के दो बड़े पीसेस ऑफ लैंड मासेस बनाते थे। उससे भी पहले सुपर कॉन्टिनेंट था कॉल्ड पैंजिया, जब पूरे स्लैब, सारी जमीन इकट्ठी थी, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते थे, उसका नाम पैंजिया था, वो सुपर कॉन्टिनेंट था। वो टूटकर पहले दो टुकड़ों में बटा, फिर टूटकर फर्दर 5 टुकड़ों में बट गया। तो मैंटल जो है उससे कॉन्स्टेंटली कन्वेक्शन करंट्स निकलते रहते हैं, फ्लो आता रहता है, जो अंदर की लिक्विड जैसी, गैस जैसी है, वो ऐसा बहता है और ऊपर के लेयर पे धक्का मारता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये ऊपर का लेयर किस चीज का बना है, टेक्टोनिक प्लेट्स का, यानी कि क्रस्ट के बड़े बड़े स्लैब्स से कवर्ड है। तो ये स्लैब्स कई बार इस प्रेशर की वजह से मूव कर जाते हैं। इसीलिए जब पहले ये सारे स्लैब्स जुड़े हुए थे और बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एग्जिस्ट करता था, उसको धक्का लगा लगा के अंदर करंट्स ने तोड़ के दो टुकड़ों में बांट दिया और दो कॉन्टिनेंट्स बन गए, जिनका नाम लॉरेशिया और गोंडवाना था। उनको फिर से धक्का लगा लगा करके फर्दर और टुकड़ों में तोड़ दिया और हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए। अब बच्चे ये जो धक्का अंदर से लगता है ना, इसी की वजह से ना ट्रेमर्स फील होते हैं, शिवरिंग फील होती है। अचानक से कहीं पे जोर से, और पूरे धरती पे एक साथ नहीं आता, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक प्लेट पे धक्का लगेगा, अचानक से अंदर से प्रेशर आएंगे इन वेव्स की वजह से, तो ये मूवमेंट होगी, वही अर्थ के क्वेक की तरफ फील होता है।
कई बार ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग होती है, अंदर से प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि स्लैब में गैप आ जाता है या वो ओपन अप हो जाता है, तो अंदर का लावा बाहर फूट कर निकल जाता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन कॉज करता है। तो इसकी वजह से ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स होते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टिनेंट मूव कर जाता है, जगह मूव कर जाती है। पहले कुछ और मैप था, अब कुछ और मैप हो गया। अर्थक्वेक्स आते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। And finally, we come to the most centric layer of the earth, core. कोर अर्थ का सबसे अंदरूनी लेयर है। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो एकदम सेंटर है, बिल्कुल जो यहाँ पे पिन पॉइंट कर सकते हो आप, ये वाला पोर्शन, ये हमारा इनर कोर है। और ये जो बाहर का थोड़ा मैंटल के बाहर जो थोड़ा कम गरम, थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये देखो ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आउटर कोर कहलाता है। तो इनर कोर और आउटर कोर में कोर डिवाइडेड है। आउटर कोर बना हुआ है मोल्टन आयरन एंड निकल का। आप देख रहे हो सिर्फ मेटल्स बनी हुई है, इसीलिए ये जब लावा बर्स्ट होता है तो बर्स्ट होकर के बाहर अर्थ के सरफेस पे भी आ जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, और वहीं से हम आयरन, निकल, बसाल्ट या अलग अलग तरह के मिनरल्स, मेटल्स निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आयरन की इतनी सारी चीजें हमने बनी हुई देखी अपने अराउंड। सोचो धरती के अंदर कितना सारा आयरन है जो मोल्टन है, इतनी गर्मी में बिल्कुल गला हुआ है और बर्न कर रहा है कोर के अंदर। तो आउटर कोर हमारा आयरन और निकल का बना हुआ है, वो सराउंड करता है इनर कोर को और रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कन्वेक्शन करंट्स। तो ये जो हमारा पूरा ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, जो हम कह रहे थे कितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की तरह हमारा अर्थ क्यों है, आयन में बच्चे मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं। जो मैग्नेट बनता है वो आयन से बनता है, कि आप मैग्नेट रखा, वो कुछ अट्रैक्ट करके आयन का अपनी तरफ खींचता है ना। तो हमारे अर्थ में जब इतना सारा आयन आउटर लेयर में ही चल रहा है, बर्न कर रहा है, तो आप सोचो उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग पोलिंग क्वालिटीज होंगी। तो वो आपका क्या होता है, इनर कोर में हमारा बहुत सारा, सॉरी आउटर कोर में बहुत सारा आयन है, वही हमारे अर्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देता है और वो सराउंड करता है इनर कोर को, जनरेटिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कन्वेक्शन करंट्स। तो ये जो करंट्स चल रहे हैं, आप साइंस में जैसे जैसे और पढ़ते जाओगे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी, बट द पॉइंट बीइंग, ये आउटर मोस्ट लेयर आयन से बना है, इसमें कन्वेक्शन करंट्स हीट की वजह से कॉन्स्टेंटली वेव्स फ्लो कर रहे हैं, और वही एक मैग्नेट फील्ड की तरह, मतलब जैसे मैग्नेट रख दो तो वो क्या करता है, आप ऐसा नहीं है कि मैग्नेट के एकदम पास एक आयरन की नेल को ले जाओगे तभी वो चिपकेगा, या कॉइन को बिल्कुल उसके ऊपर रखोगे तो चिपकेगा। मैग्नेट अगर यहाँ रखा है तो ये थोड़ी दूर से ही आपको ना ऐसा सर्टेन पुल फील होने लग जाता है, एक सर्टेन एरिया तक। जितना बड़ा मैग्नेट उतनी ज्यादा डिस्टेंस से वो अट्रैक्ट कर लेता है कॉइन को। तो क्या हो रहा है, मैग्नेट चाहे कहीं भी हो, वो अपने अराउंड एक फील्ड बना देता है जिसमें वो अपनी खींचने वाली मैग्नेटिक क्वालिटीज को इंप्लीमेंट कर देता है। तो मैग्नेट यहां भले हो, उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसमें वो फोर्स रहता है कि वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करके चिपका ले। वैसी ही फील्ड यहाँ अर्थ के अराउंड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसे, मैग्नेट से क्रिएट की गई फील्ड उसके अराउंड जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, वो इन कन्वेक्शन करंट से कोर के अंदर कॉज हो रही होती है बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर। नाउ द इनर कोर की अगर बात की जाए, ठीक है, ये जो इनर कोर है हमारा, इट्स अ सॉलिड स्फीयर, एक सर्कल है, सॉलिड है वो, प्रीडोमिनेंटली अगेन आयरन और निकल से बना हुआ, इसीलिए इसे नाइफ कहते हैं, ठीक है, नाइफ। Fe आयरन का जो फेरस आपका साइंटिफिक नेम है, एंड Ni फॉर निकल, नाइफ कहलाता है। तो सियाल, सीमा, नाइफ। इट इज सब्जेक्टेड टू इमेंस प्रेशर, ये पूरे अर्थ से दबा हुआ सबसे अंदर लेयर है, तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बहुत प्रेशर है, और प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और इतना ज्यादा हाई है कि आप उसको सन में जो गर्मी है, सन में जो टेम्परेचर है, उससे कंपेयर कर सकते हो। तो कुड यू हैव इमेजिन, सन से इतनी गर्मी आती है, हमारे अर्थ के अंदर ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर का कुछ कॉन्स्टेंटली उबलता रहता है। सोचने में कितना डेंजरस लगता है ना। चलो, तो इसी बात पे ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स, स्टोन और सॉइल।
Let's quickly look at the hint. The inner core of the earth is made up of rocks, metals, stone, or soil. And the correct answer would be, हिंट देख लिया आपने? तो आयरन है, निकल है, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सारी चीजें क्या है? मेटल्स हैं। सो इट इज मेड अप, इट्स अ सॉलिड स्फीयर जो कि बनी हुई है आयरन और निकल की, यानी कि इसीलिए नाइफ भी कहते हैं, यानी कि बेसिकली मेटल्स जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो मेटल्स ही हैं जो हमारा इनर कोर बनाती हैं। अब हम रॉक्स और मिनरल्स की बात करते हैं। हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ समझ लिया है, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर। रॉक्स क्या है बेटा? ये जो चीजें अंदर से लावा वगैरह निकल के आ रही हैं वही सॉलिडिफाई होकर के पत्थर बनती हैं इवेंचुअली। सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर आपको समझना है तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अंदर मेटल था, सब कुछ था, डस्ट था, गैस था, बाहर आया, सॉलिडिफाई हुआ और चेंज होता है पत्थरों में। रॉक्स are aggregates of minerals and other geological materials that comprise the earth's crust. तो अब जो अंदर से सामान निकल कर आया अर्थ के, वो बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ। अब वो जब अंदर से आया तो उसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट मेटल्स, मिनरल्स, जैसे कि आपका सिलिका, एल्यूमिनियम, बसाल्ट, निकल, आयरन, जो सब अंदर अर्थ के ट्रैप है वो सब बाहर लेकर आता है, वही सॉलिडिफाई होता है। तो ये मिनरल्स आपको रॉक्स में मिलते हैं, लेयर्स में, सॉइल में मिलते हैं। तो ये बाहर जो आपका एग्रीगेट होकर आते हैं उनसे ही बने मिनरल्स और भी जो जियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनसे जो क्रस्ट बनता है उसे ही हम रॉक कहते हैं। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तो आप यही बताओगे कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो रॉक्स का बना हुआ है। दे वेरी वाइडली इन कॉम्पोजिशन, यानी कि किन किन एलिमेंट से बना है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है। पूरे अर्थ पे स्टैंडर्डाइज नहीं है कि सब जगह ऐसा ही होगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। रॉक्स आपको पता ही है क्या होते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन में जिन चीज़ों से, जिन एलिमेंट से बना है, जो इनका टेक्सचर है, कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स हैं, कहीं बहुत हार्ड रॉक्स हैं, कहीं अलग कलर का है, कहीं अलग सरफेस का है, कहीं अलग ओरिजिन है, ये सब वेरी करता है थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट शेप द अर्थ सर्फेस। तो जहां अलग अलग कॉम्पोजिशन, टेक्सचर, ओरिजिन मिल रहा है हमें, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइमलाइन में, हिस्टोरिकली वक्त के साथ धीरे धीरे हमारा सरफेस, हमारा क्रस्ट फॉर्म हुआ है, जो कि अलग अलग रॉक्स के फॉर्मेशन से हमें रिफ्लेक्ट होता है। कभी टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, कभी कम रहा होगा, कभी कोई गैस रहा होगा, कभी कोई गैस प्रेजेंट रहा होगा। अर्थ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर अर्थ्स क्रस्ट टू सॉलिडिफाई, and every time and while it was solidifying, the conditions in which it did was very different. So हर एक डिफरेंट कंडीशन में जो रॉक कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो रॉक फॉर्म हुआ, वो भी डिफरेंट नेचर का हुआ। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड रॉक हर जगह नहीं मिलेगा। अलग अलग तरीके के रॉक्स हमें देखने को अलग अलग जगह मिलेंगे। रॉक्स सर्व एज एसेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री। तो जब आप इन रॉक्स की स्टडी करते हो तब आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला पत्थर जब बना तो ये कंडीशंस रही होंगी, ये बना तो ये रही होंगी, और इससे हम अर्थ के हिस्ट्री को ट्रेस कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि कैसे हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन, अर्थ का फॉर्मेशन एज इट इज टुडे हो पाया होगा फ्रॉम जस्ट अ बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट। सिर्फ एक गैस और डस्ट के बॉल से कैसे हम इस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गए जैसा वो आज दिखता है। प्रिजर्विंग क्लूज about the past, environments, climate and geological events. अब देखो, जब ये चीजें सॉलिडिफाई हो रही थी तो बहुत सारी चीजें उस वक्त जो एग्जिस्ट करती थी, अलग तरह के मिनरल्स, कुछ एलिमेंट्स, वो सब इन रॉक्स में सॉलिडिफाई हो गई, जम गई, तो प्रिजर्व भी हो गई। तो जो अलग अलग फीचर्स हैं
वो सब ट्रैप होते गए इन रॉक्स में, और जब इनकी हम स्टडी करते हैं, इनको जब हम तोड़ कर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम इन सारे डिटेल्स को निकाल पाते हैं, इन सारे अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं कि अर्थ के फॉर्मेशन की जर्नी कैसे रही होगी। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की स्टडी कर लें। ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको ये डिटेल ना 10th स्टैंडर्ड तक कम से कम तो याद रखना ही होगा अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो सिर्फ ये सोच करके अभी मत पढ़ना कि हमें एग्जाम में इसको देना है और उसके बाद हमारी कहानी खत्म, नहीं। इग्नियस रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, इन सब का रेफरेंस आपको आगे चल करके भी बहुत ज्यादा मिलेगा। अब चलते हैं इग्नियस रॉक्स के साथ। बहुत सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लावा अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो बर्स्ट करके अर्थ की सरफेस पे आता है, बहुत गर्म से अंदर बाहर आता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा सॉलिडिफाई होकर के पत्थरों में, रॉक्स में, माउंटेन्स में चेंज हो जाते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं, जो अंदर का मैग्मा निकलकर कूल होता है, वो सॉलिड हो जाता है, उससे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सो रॉक्स विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द मोल्टन लावा दैट केम आउट, बर्स्टेड आउट थ्रू वॉल्केनिक eruptions on the crust of the earth and then solidified into a rock is known as igneous rocks. दो तरह के इग्नियस रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो ये देख लो एक बार फिर से, ऐसे मोल्टन लावा अंदर से बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होकर के इन रॉक्स की तरह जमने लग जाता है। ठीक है, अब ये पूरे टाइम फ्लो नहीं करता रहेगा, बंद हो जाएगा फ्लो करना, तब वो ठंडा हो जाएगा और रॉक्स में चेंज हो जाएगा। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव हमें समझ आ गया। इग्नियस एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका इग्निस, जिसका मतलब फायर है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स एंड अदर जियोलॉजिकल मटीरियल्स that comprise of Earth's crust: rocks, core, magma, mantle. Dash are aggregates of minerals and other geological materials that comprise of the Earth's crust, and the correct answer would be रॉक्स। रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अभी हमने इग्नियस के बारे में पढ़ा है। इग्निस जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लिटरली फायर होता है, वो अंदर के अर्थ के फायर से बाहर निकल करके सॉलिडिफाई होता है और फॉर्म करता है क्या, हमारा इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलो तो इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड टुडेज सेशन। लेट्स क्विकली समराइज। समरी हमारी क्या पढ़ी, क्या क्या पढ़ा हमने? तो हमने पढ़ा कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर मैंटल है, और सबसे बाहर जो हमारा लेयर है वो क्रस्ट है। तो क्रस्ट, मैंटल, देन द कोर इज इन 2 लेयर्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। द क्रस्ट वेरीज इन इट्स थिकनेस एंड कॉम्पोजिशन, जैसे कि कॉन्टिनेंटल कॉम्पोजिशन जो है वो 35 किलोमीटर्स की मतलब थिकनेस है। ओशनिक जो क्रस्ट है वो और पतला है, क्योंकि ओशन की वजह से गड्ढा ज्यादा है, ज्यादा नीचे जाके होता है, तो 5 किलोमीटर का होता है, वेरी क्लोजर टू द मैंटल एज वेल। एंड ऑफकोर्स द क्रस्ट वेरीज इन नेचर एवरीवेयर। जो कॉम्पोजिशन है उसकी, सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है। ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है थिनर लेयर ऑफ सीमा से, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से। द मैंटल इज सेमी सॉलिड, लगभग 2900 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में आता है ये। डाइविंग टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स, द फ्लो ऑफ द लावा इनसाइड।
द कोर कंप्राइजेज एन आउटर मोल्टन लेयर जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसे नाइफ कहते हैं, निकल और फेरस से बना होता है ये, यानी कि आयरन से। और आपका आउटर मोस्ट लेयर वही है, इनर मोस्ट लेयर में इतना टेम्परेचर है कि उसे प्रेशर और हीट की वजह से कि उसे हम, और सबसे डेंस भी है बाय द वे, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं अर्थ सन के हीट से। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। एंड रॉक में हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा जो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है, सिंपल है। चलो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी सुना है कि रॉक्स भी एक साइकिल के थ्रू जाते हैं तो इसे रॉक साइकिल कहते हैं। सही सुना है। ये एक प्रोसेस है थ्रू विच वन टाइप ऑफ रॉक विल चेंज इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, यानी कि बना तो इग्नियस रॉक था लेकिन समय के साथ अलग अलग सर्कमस्टांसेस के साथ धीरे धीरे बहुत वक्त बीतने के बाद वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर देगा और इग्नियस से कुछ और बन जाएगा। So this is known as a rock cycle and it is a process through which one type of rock changes to another under certain conditions in a cyclic fashion, in a periodic proper flowing fashion. इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। So stay tuned so that you do not miss on any of this and we'll find about it in the next session. Now what do we have for you? बच्चों आप जैसे ये सेशन अटेंड कर रहे हो ऐसे कॉन्स्टेंटली लाइव सेशंस हम इम्बाइब के करते रहते हैं। इम्बाइब लाइव सेशंस, मोर देन 60 सेशंस हैपन इन डिफरेंट सेगमेंट्स एवरी डे ऑन द ऐप. So make sure to attend the ones which is of your interest. Plus अगर आप लाइव सेशन नहीं भी देख रहे हो तो there are some beautifully created videos that's out there on the Imbibe platform, more than 70,000. आपके पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस हैं। उसके अलावा दूसरे ग्रेड्स के, जनरल नॉलेज के, हर एक जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो आपको वहाँ पे भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू दिस विथ full honesty and conviction. Look at those videos. आप जब वो वीडियोस देखोगे आप जो भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो वो इस तरीके से आपके दिमाग में चमकेगा कि क्या ही कहने। प्लस आप और किताबें पढ़ना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, इतनी छोटी सी क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड हैव लेस रिसोर्सेज और आवर एक्सेस टू रिसोर्सेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. सो एज सिंपल एज यू विल ऑलवेज हैव योर हैंड्स ऑन दीज थिंग्स with the books that's present on the Imbibes platform. So just make sure to access it, go ahead, utilize it, use everything that you have got, and you can also get your doubts resolved. You can also get your doubts resolved. That's the beauty of it. Imbibe Lens का magic तो हम देख ही चुके हैं. And then you have some beautiful interactive Kubo lessons. तो हमने देखा अभी कैसे हम 3D मॉडल का कोर, मैंटल सब देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे. It was so fun, right? प्लस बुक्स में हमारे पास क्वेश्चंस तो होते हैं बट ये क्वेश्चंस काफी कम होते हैं. 5-6 क्वेश्चंस कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और इससे ऐसा लगता है कई बार कि एनफ प्रैक्टिस नहीं हुआ, हमें और क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते, कोई अलग अलग पूछता तो हमारा बेटर रिविजन हो पाता, हम बेटर अपनी नॉलेज चेक कर पाते. सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट्स readily available on the Imbibes platform. Go ahead, take an attempt, use it for your growth and create your achieve journey. यानी कि लेवल ऑन लेवल आप अपना ग्रेड इंक्रीज कर सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज और जो आपका कमांड है ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी चैप्टर, ऑन एनी सब्जेक्ट, उसका एक प्रॉपर प्लान के साथ यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन. प्लान बनाने में स्ट्रैटेजी बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी हम बना कर देंगे, आपको रिमाइंडर्स भी देंगे, फॉलोअप्स भी देंगे. यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस. बट द डील ओवर हियर इज दैट इट्स जस्ट लास्ट फ्यू डेज ऑफ फ्री एक्सेस टू इम्बाइब और बहुत लंबे समय तक ये अवेलेबल नहीं रहने वाला है. तो जब तक फ्री है फुल एक्सप्लोर कर लो. ट्रस्ट मी, यू वुड वॉन्ट टू buy it after that because it has so much to offer, including the virtual lab experience, the Imbibe Lens experience, the beautiful videos that's there under Imbibe Learn, right? And doubt resolution की जहाँ तक बात है तो जैसे मैं आपको बताई थी, आप जब भी ऐप या वेब खोलते हो तो ये देखो यहाँ पे आस्क अ डाउट MBA बैठा रहता है पूछने के लिए. उस पर क्लिक करते हैं आप ऐसे चैट में आ जाओगे जहाँ पे यू कैन क्लैरिफाई एनी डाउट दैट यू हैव. How amazing is that, isn't it? So just make sure that you stay tuned, you utilize all of this. Do subscribe to the channel if you have not already. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे हिट ज़रूर करना लाइक बटन और कमेंट में बताना कैसा लगा. कुछ डाउट है तो आप हाँ क्लैरिफाई कर सकते हो. What are your other requirements? What kind of videos you can let me know in the comment section and I'll make sure to help you out with those.
Now, with this, we are done with today's topic. I'll see you in the next topic of the session of the chapter. Till then, stay tuned, take good care of yourselves. Hasta la vista, bye bye, ciao. And keep subscribed. Just make sure that you're staying subscribed and keep imbibing. Do not forget, we are always here for you.